फैक्टर्स 1 2 एंड 3. सॉरी, 6 के फैक्टर्स होंगे 1 2 एंड 3. एंड व्हाट अबाउट 6? Oh, हाँ. Right? Yeah. So basically factors are those numbers which when multiplied will give you the number that जिसके factors तुम ढूंढ रहे हो, right? तो numbers के factors ढूंढना तो आप बचपन से I think first second standard से कर रहे हो, yeah? Then there's something called as prime factors जिसमें only prime numbers जो है उसका factor 1 2 3. yeah, and that you do it through the prime factorization method. अब जो है हम लोग algebraic expressions जो है उनके फैक्टर्स ढूंढेंगे, ठीक है? यानी कि अगर आपके सामने दो algebraic expression है 2x plus 3 and 3x plus 4, तो इन दोनों एक्सप्रेशंस को अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा? 2x into 3x plus 4 plus 3 into 3x plus 4. Am I right? So final क्या आएगा? 6x square plus 8x plus 9x plus 12, and then you add these, so this will become 6x square plus 17x plus 12, right? So this is your product. तो आंसर है, ये तेरा प्रोडक्ट है. और ये चैप्टर में क्या होने वाला है ना, ये जो आंसर अपने को मिला यही आपका क्वेश्चन रहेगा. सो आपका प्रोसेस क्या होगा? ये ऐसा क्वेश्चन रहेगा और आपको बोला रहेगा फैक्टराइज. मतलब आपको दिया है प्रोडक्ट और आपको आंसर कैसा आना चाहिए? ऐसा. मतलब क्या मल्टीप्लाई करके ये आंसर मिला, सो इसके फैक्टर्स ये आने चाहिए, ठीक है? तो ये कैसे आएंगे? There are ways to find out the factors. There are 2 3 or actually 3 4 methods that you can utilize to find factors. Shreyas, keep your camera on, beta. And why are you going out and out of the video? It's an important chapter, don't miss it. Are you there, Shreyas? Yes. Okay. Divyansha, Shreyas, keep your cameras on. जैसे लिखना है. Yeah. So no, ये नहीं लिखा चलेगा. This is just an example. So what you are understanding is that your question will be a product and your entire purpose of this chapter is to find out its factors. मतलब ऐसी कौन सी algebraic expression है जिसको multiply करके आपको question का product मिलेगा. Okay. Now each exercise of this chapter represents a different method of factorization. And of course, there will be an exercise in the end which will include all types. ऐसा जरूरी नहीं है कि एक algebraic expression में एक ही method use होती है. Sometimes you have to use all the multiple methods and then मतलब वो factorize तब तक करते रहो जब तक आपको final factors नहीं मिलते. Now, the first method of factorization is taking out common factors. You can write this, okay? जिसके ऊपर based आपकी first exercise है, okay? So this is taking out common factors. अब सारे methods लिख लीजिए. Then the second method of factorization is by grouping. मतलब आप उसको similar, जैसे आप like terms करते हो, right? आपको पता है ना like terms हम साथ में लेते, वैसे ही ग्रुप्स में आप इसको बांटोगे और फिर उसके ग्रुपिंग इंक्लूड्स, ग्रुपिंग सिर्फ ग्रुपिंग नहीं रहता है, ग्रुप बना के देन यू टेक आउट कॉमन फैक्टर्स. ओके, सो ग्रुपिंग में सिर्फ एक एक्स्ट्रा स्टेप होता है कि आप पहले ग्रुप बनाते हो एंड देन यू टेक आउट कॉमन फैक्टर्स. ओके, देन द थर्ड मेथड इज कॉल्ड एज यूजिंग डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स. ओके, इसके ये वाला जो फॉर्मूला है या ये वाली जो आइडेंटिटी है वो आप एनीवेज कई बार यूज करते हो सॉल्विंग में. डू यू ऑल नो दिस आइडेंटिटी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए माइनस बी. यस,
So I can say this is the product और इसके factors a plus b और a minus b. This is the easiest thing to do. Okay, it's a very easy thing. But ये भी one of the methods है to use the identity. Of course, उसमें question में दोनों squares होने चाहिए. So it can apply to only those specific things. जहाँ पे ऐसे दोनों squares का difference है. Then the last method is called as factorization of trinomials. मतलब, what do you mean by trinomials? Anyone can tell me? Miss, 3 variables. Three variables? Oh, Okay. Sanvi? Three sets. Like, Three? Miss, there are three sets like A, B plus. So you are trying to say three terms? Yes, Miss. Yes, Miss. Three terms. Yeah. So there are three terms. Okay. So trinomials means there will be three terms. Okay. So your product is three terms. जैसे हमने example पहला देखा और उसका factorization कैसे करना है? So for that you use this method which is called as splitting the middle term. Okay. वो कैसे करना है, कैसे होता है? We'll come to it. So there are basically, like 4 methods, and last एक method लिख सकते हो, factorizing completely. इसमें कुछ अलग method नहीं है, but it's a combination of all above. ठीक है? मतलब sometimes you have to use 1, 2, 3 methods. तो उसको हम completely ऐसा बोलते हैं, तो मतलब आपको end तक सारे methods से कितना हो सकता है factorization उतना करना है. ठीक है? आपको 9th में भी ये चैप्टर है, उसमें और भी मेथड्स थोड़े 1-2 बढ़ेंगे, बट अभी के लिए इतना ही है. एनी ओमिशन इन एक्सरसाइजेस के सारी एक्सरसाइजेस है. मैम टीपीएस में तो अभी तक ये चैप्टर चालू नहीं हुआ है तो पता भी नहीं है. हाँ, बट आई डोंट थिंक रहेगा ओमिशन, क्योंकि 4 मेथड तो है ही. सीए बस सीए को लास्ट वाला नहीं है, सिर्फ 4 ही है. मतलब ABCD. फैक्टराइजिंग कंप्लीटली के बारे में नहीं बताया. ठीक है, देखते हैं. अभी हमने सिर्फ लिखा है, वैसे भी आज तो टीचर ने तो सिर्फ I was writing. common factors, grouping, trinomial of the form and difference of two squares. हाँ, मतलब सारी मेथड्स तो आ गई ना. बस लास्ट वाला नहीं है ना, फैक्टराइजिंग कंप्लीटली. तो वो कोई नई मेथड नहीं है, वो तो ऊपर का सब कंबाइन करना है ना. Miss done. Done? All right. Yes, Miss done. Now, let's do. So, guys, common factor is really easy. ठीक है? तो there are 17 questions. मैं पहले first वाला करती हूँ. Exercise 13A. Arshia has got stuck as guest. और एक कोई तो गया क्या? नहीं, अर्शिया है. 1, 2, 3, 4, 5, 11 होने चाहिए ना? नहीं, बराबर है, बराबर है. Okay, so guys, we are doing the first question. देखो, कॉमन फैक्टर मतलब अभी 15x प्लस 5, इसमें कॉमन क्या है दोनों टर्म्स में? Miss दोनों numbers. बस 5 ना. 15 से भी 5 डिविजिबल है और 5 से तो 5 डिविजिबल होगा ही. सो कॉमन फैक्टर इसमें क्या होगा? 5. x नहीं होगा क्योंकि x यहाँ पे नहीं है, तो हम कॉमन फैक्टर को बाहर लेंगे, टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर. सो ये 5 लिखा. तो अभी फर्स्ट टर्म में क्या बच जाएगा? 5 into 3 x will give you 15x.
सेकेंड टर्म में 5 into 1 will give you 5. तो ये हो गए आपके फैक्टर्स, because when you multiply 5 by this you get this. So these are your factors. Understood guys? Miss 45 3x plus 1 कैसे आया? 5 को तूने जो कॉमन फैक्टर है इसमें उसको बाहर लिया, तो अब 5 को बाहर लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 3 का 3x हो जाएगा और 5 का 1 हो जाएगा. बराबर. समझा? Is everyone understanding? Yeah, pretty easy actually. Miss, ये Miss, how did a 1 come? 5 यहाँ पे 5 है ना अनिश? Yes. 5 1 जा 5 होगा ना? Oh. Eventually Anish your answer ऐसा होना चाहिए when you multiply this you should get the question ना. मैंने बोला ना factors को multiply करके product मिलेगा. मेरा 15x plus 5 आंसर. Oh. समझा बेटा? Okay. Now well you can do the second one. Yes. Try and do the third one with you all. मिस Yes. मैंने ओमिशंस देखे तो सिर्फ डी तक ही है, तो 13 ई और एफ नहीं है. ठीक है. ए Okay. So now question number 3. 3x square plus 6x cube. ठीक है. अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है? 2 देखो नहीं 3 3 तो है, नंबर में 3 है. ठीक है. 3x नंबर देखेंगे तो 3 है. 3x और अभी वेरिएबल देखो, यहाँ पे वेरिएबल भी कॉमन है. यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो कितना एक्स स्क्वायर तक तो मैं कॉमन ले सकती हूँ. यहाँ पे सिर्फ एक एक्स एक्स्ट्रा है, सो 3x स्क्वायर पूरा ही कॉमन रहेगा. ब्रैकेट में पहले तो 3x स्क्वायर ही है तो 1 होगा, प्लस यहाँ पे 3 2 जा 6 और यहाँ पे एक x एक्स्ट्रा है इसलिए 1 plus 2x. Is everyone understanding this? कुशल समझा? Miss, why did we explain take this again? 3x square? yes Miss, Can why you did we explain take this 3x question square? again? 3x स्क्वायर को ऐसे ही क्यों लिखा? 3x स्क्वायर को नीचे मतलब सेम क्यों लिखा? सेम नहीं लिख रहे हैं हम लोग, कॉमन फैक्टर देख रहे हैं. ये दो जो आपके सामने टर्म्स है उसमें क्या कॉमन है? यहाँ पे भी 3 डिविजिबल है. पहले सिर्फ नंबर्स को देखो. 3 यहाँ पे भी 3 है, 6 से भी 3 डिविजिबल है, तो मैंने 3 लिख दिया. अभी ऊपर क्या था ना कि एक में ही x था, दूसरे में तो x था ही नहीं, तो मैं नीचे कॉमन फैक्टर में x लिख सकती हूँ क्या? नहीं. अब यहाँ पे क्या है कि दोनों जगह x है, यहाँ पे x स्क्वायर है और यहाँ पे x क्यूब है, तो x स्क्वायर को तो मैं कॉमन ले सकती हूँ कि नहीं? क्योंकि इफ यू थिंक अबाउट दिस, this is 3 into x into x, well this is 6 into x into x into x, तभी आएगा. तो ये दो x तो कॉमन हो गए कि नहीं? राइट? Are you all understanding, दिव्यांशा? तो इसीलिए मैंने 3 और x स्क्वायर को कॉमन ले लिया. अब फर्स्ट ब्रैकेट में तो कुछ नहीं है बचा, वही पूरा कॉमन टर्म है, तो वो तो 1 हो जाएगा. Are you all understanding? जैसे ऊपर 5 के साथ तो 1 हो गया, एंड यहाँ पे 6 है तो 2 लेना पड़ेगा और एक x एक्स्ट्रा है तो वो भी लेना पड़ेगा. नाउ इफ यू मल्टीप्लाई दिस, सी इफ यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस तो क्या हो जाएगा? लेट्स से वी मल्टीप्लाई दिस, तो 3x स्क्वायर इंटू 1 विल बी 3x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 6 x स्क्वायर इंटू x x क्यूब. इज दैट योर क्वेश्चन? समझा गाइस? सबको समझ रहा है? मैत्रेय, दिव्यांशा, यस, श्रेयस बेटा, ओके. सानवी, आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, miss. Okay. So this is how you take common factors. Miss चलो we'll do more तो you'll get a hang of it. ठीक है? Yes, कुशल. we have 5 minutes only left. For what? Then physics. No. We'll be doing more. We started the lecture late. Okay. Gautam, can we do 3x and write 1x and 2x? No, Gautam. You know why? Because फिर वो 1x and 2x में still x common रहता है ना.
So when you take out the common factor, you max it out. You take out all the common factors. Understood? 2x square, not 2x. Yeah, whatever. Firstly, तू ऐसे भी गलत कुछ प्रपोज कर रहा है, वो मैंने सही बोलना चाहिए. क्या बात है गौतम. Okay, now next. So since we are doing odd ones, let's just continue that. Question number 5. 2x cube b square minus, what happened to my pencil, dude? इसको क्या हो गया? So 2x cube b square minus 4x raised to 5 b raised to 4. तो ना गाइस एकदम टर्म टू टर्म जाओ. पहले तो 2 और 4 है, तो क्या कॉमन हो गया? 2. यहाँ पे x क्यूब है, यहाँ पे x raised to 5 है, तो कॉमन क्या होगा? x क्यूब. बराबर है. यहाँ पे b स्क्वायर है, यहाँ पे b raised to 4, so what is common? B square. b स्क्वायर. ठीक है. अभी हम ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म तो वैसे का वैसा है, तो वो तो हो जाएगा 1. बराबर है. माइनस 2 2s are 4, यहाँ पे x raised to 5 है, ये x raised to 3 है, तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर b स्क्वायर. करेक्ट? आई ऑल अंडरस्टैंडिंग नाउ? फर्स्ट टर्म का भी आएगा और सेकंड टर्म का भी आएगा ना ब्रैकेट में. हाँ. रिमाइंडर यस. मैंने वो स्किप कर दिया फर्स्ट टर्म. Miss, so we are just तो subtracting. अगर ना? स्किप करेगी ना सानवी, राइट तो है. तेरा प्रोडक्ट ही बदल जाएगा ना. मिस आंसर राइट. अगर तू Miss, ऐसे तो करेगी, जहाँ पे मन आता है वो डालना जरूरी है. अगर तू ऐसे करेगी, 1 नहीं डाला, देख मैंने ग्रीन में नीचे लिखा है, तो क्या हो जाएगा इसका प्रोडक्ट? 2 2s are 4, x raised to 5, b raised to 4. Is that the entire question? No. Understood? So that will be an error in fact. Miss, Miss- at last we are subtracting, no? That b x raised to 5 and b raised to 4. We subtracted. Yeah, that is a subtraction sign between two terms. Yes, miss. Yes. But you are multiplying the outside term with inner both terms, right? Yes, miss. Okay, moving on. Question 7. अच्छा, अभी यहाँ पे 3 टर्म्स है. a क्यूब b माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस b क्यूब. अब मुझे बताओ, ये तीनों टर्म में मैं a को कॉमन ले सकती हूँ क्या? यस मिस. नो मिस. नो नहीं मिस. ले सकती, क्योंकि थर्ड टर्म में तो a है ही नहीं. नो तो मिस. a तो कॉमन फैक्टर होगा ही नहीं. अब b में क्या लूंगी? यहाँ पे सिंगल b है, यहाँ b स्क्वायर है और b क्यूब, तो मैं सिंगल b ही ले सकती हूँ, राइट? Miss, do we have to split it? No, not this. So ये हो जाएगा b कॉमन, यहाँ पे हो जाएगा a क्यूब माइनस a स्क्वायर b माइनस b स्क्वायर. Have you understood this one, everyone? नो मिस. आई डिडंट अंडरस्टैंड. Okay, कुशल, ये तो समझा ना कि सिर्फ b को क्यों कॉमन लिया? क्योंकि a को तू ले नहीं सकता, क्योंकि Miss, I third term understood. में तो a नहीं है. मिस तो मैं बी को भी नहीं ले सकता ना, क्योंकि बी का कोई नहीं है. है ना, यहाँ पे भी b है, यहाँ हाँ. b स्क्वायर है और b क्यूब है, तो हाँ. सिंगल b को तू ले सकता है, तो वो लिया. फिर फर्स्ट टर्म में यहाँ पे तो सिर्फ a क्यूब बचा, क्योंकि ये एक b तो आ गया बाहर. यस मिस. फिर यहाँ पे a स्क्वायर और एक b बाहर है, तो एक ही b रहेगा अंदर, यस मिस. यस मिस. और ये b स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि एक b यस बाहर. मिस, क्योंकि एक भी बाहर आ गया. समझा? Okay, guys. मिस लव फिजिक्स. No. We'll finish this exercise. Question 9.
17 a raised to 6 b raised to 8 minus 34 a raised to 4 b raised to 6 plus 51 a square b4. 17 का टेबल आता है गाइस. Yes, miss. So Miss, इस 18 2 the 34, 17 3 the 51. एग्जैक्टली तो 17 तो कॉमन फैक्टर हो गया नंबर्स में, Yes, miss. वो तो हम लिख देते हैं. अब a में क्या लेंगे कॉमन? यहाँ a raised to 6 Miss, है, every two लेंगे. 4 है, This A raised to 2. a A raised raised to 2 common लेंगे. राइट. एंड b में क्या कॉमन है? B raised to 8 4. b6 नहीं, 2 2 2 2. b4 ना, B raised to b2 4. कहाँ है कुशल? नहीं, ये मिस, B में common ना. b raised to 8 b raised to 6 b raised to 4, तो b raised to 4 लेंगे ना कुशल. हाँ. जब जो सबसे छोटा है वो लेंगे. सो ये b raised to 4 हो गया. अब फर्स्ट टर्म में क्या बचा? 17 तो वैसे का वैसा है, यहाँ पे 6 है ना, a raised to 6, तो क्या लेंगे? a raised to 4 और b raised to 8 है, मतलब b raised to 4. फर्स्ट टर्म हो गया, समझ रहे हैं ना सबको? Yes, miss. सेकेंड टर्म में क्या लेंगे? Yes, -2, ये होगा a स्क्वायर b स्क्वायर और Yes. यहाँ पे हो जाएगा +3. बस But a miss, square b plus raised- 3. बस उतना ही रहेगा. Ma'am, अरे, why did you take b square in the second term? सी सेकेंड टर्म में दिव्यांशा लुक ये Okay, what is left? yeah, what is left? That understood? Everyone, are you all understanding? Miss done. Okay. Miss, I will do visit. Are Kushal, you can't ask me every minute. Huh? It's not going to work like that. Sorry. Okay, I feel like I should do the 10th one also. Yeah. So 3x raised to 5y minus 27 x raised to 4y square plus 12 x cube y cube. So what is the common factor in all this? 3 for number. 3 9s are 27, 3 4s are 12. तो numbers में तो क्या आ गया common? 3. अभी x में क्या common होगा? ये x raised to 5, x raised to 4, x cube. तो x Miss, cube. X cube common. और y में क्या होगा? y, y square, y cube, तो only y. अब फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा? x raised to 5 है तो x square, बाकी 3 और y तो है. X माइनस square. 9xy प्लस 4 only y square. x cube तो आ गया. Yes, miss. Miss done. Ma'am, you are doing the 11th one also, right? I will. But अब तक सबको समझा है? Okay, I'm going to ask individually. Give me like, show me a thumbs up. Kushal, Maitreya, Tanisha, Miss, can I bring bottle? Thumbs up. go fast. Come fast. Anish, Shreyas, okay. Arshia, Divyansha, Sanvi, Gautam. Whoa, Gautam, मुंडी नहीं दिखा रहा है. Shaurya, my baby. Okay. All right. So you guys have understood abhi tak because these were the simpler things. कुछ complicate नहीं हो रहा है. Win exam. थोड़ा सा अलग है. Now, question 11 जो है उसमें ना ऐसे अभी हम लोग सिर्फ ऐसे नंबर और वेरिएबल्स देख रहे थे. यहाँ पे क्वेश्चन को ठीक से देखो. Finally, you are taking out common factors. Why is this losing out? ये इसको We will take a minus b because rest all the terms have different Miss, variables. we will not multiply it.
नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना है बेटा, यहाँ पे फैक्टर्स ढूंढने हैं ना। नहीं मिस, पर पहले हम सबको मल्टीप्लाई करने के बाद उसको कॉमन फैक्टर्स ले सकते हैं ना हम। नहीं, वो तो बड़ा लंबा पार्ट हो जाएगा, स्कूल और में तो मल्टीप्लाई करना ही नहीं है। I'll tell you, दिव्यांशा बोल रही थी वही सही है। I don't मिस know स्कूल why में this तो is ऐसे ही not- कराया था टीचर ने, मल्टीप्लाई करके करवाया था क्योंकि वो नहीं इजी नहीं, लगा। ऐसा थोड़ी कराएगी टीचर, she'll be crazy। नहीं मिस वैसे ही किया है मैं। नहीं, आई थिंक तू कंफ्यूज हो रही है। ओ, इसका बैटरी कम हो गया है, वही मैं सोचूं, बिल्कुल नहीं चल रहा। ओके, एनीवेज कराती हूँ मैं। देखो, x स्क्वायर इंटू a माइनस बी माइनस वाई स्क्वायर इंटू a माइनस बी प्लस जेड स्क्वायर इंटू a माइनस बी। यार, यहाँ से तुमको कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। एक चीज तो क्लियरली कॉमन दिख रही है ना, क्या है? A minus B, because we cannot take neither X, neither Y, neither Z, Yes. because they're all different. So what I am going to do is I am just going to take a minus b as common. Understood? And put everything else that is there in the bracket, x square minus y square plus z square. And that's all. This sum is only this much. Are you understanding? Miss, this is the answer. Yeah, baby. Yeah. Just wanted to say yeah. पता ही आंसर है, बट तुझे ये बोलना था, इसके लिए तूने ये And then, what is the other process we can solve it with? If you want to, is there any other process? No, Method? this is it. Why you want Okay. to complicate your life? Only one line method. Yeah. 13, 12 will, no, 11. Okay, 12. Okay. I'll do 12, then I'll do 14. Let's do question 12 then. X plus y into a plus b, बीच में plus x minus y, a plus b. Now look at this. What is common over here? A plus b, a plus b. Yes? मिस देखा जाए तो सब कुछ कॉमन ही है ना, मतलब कि हम लोग बस साइंस को नहीं देखते। अरे नहीं, x plus y is a different term than x minus y. ये थोड़ी कॉमन है, सिर्फ a plus b कॉमन है ना सानवी। साइन एक्स और वाई को एक एक टर्म लेंगे तो वो मोनोमियल हो नहीं ले जाएगा ना। सकते ना, एक एक ऐसे नहीं ले सकते, एक एक हम लोग कभी ऐसे लेते भी नहीं है ना। यहाँ पे दिस इज, अच्छा सानवी यू टेल मी, दिस इज Miss. a 4 term polynomial or a 2 term polynomial? Miss. हाँ, 2 टर्म। 2 term ना, क्योंकि ये और ये के बीच में एक ही प्लस साइन है, समझा? तो ये टर्म फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में क्या कॉमन है? ए प्लस बी। बस, समझा बेटा? ओके। हाँ कुशल बोल। मिस मुझे आंसर ब्रैकेट में a प्लस बी फिर x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई आया। बराबर है। ये एक्चुअली इसमें a प्लस बी कॉमन हुआ ना, फिर ब्रैकेट में यहाँ पे आएगा x प्लस वाई, यहाँ पे नहीं, x प्लस वाई, बीच में प्लस है ना, प्लस x माइनस वाई। ठीक है, तो एक्चुअली इसमें थोड़ी वर्किंग होगी गाइस, क्योंकि बाहर तो a प्लस बी ही रहेगा। अब ये ब्रैकेट में अगर खोलेंगे तो x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, तो प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा। सो ये हो जाएगा a प्लस बी और x प्लस एक्स क्या हो जाता है, 2x. So final answer will be 2x outside and into bracket a plus b. Can someone check this answer for me? Can someone check this answer for me? I'm sure Tanisha will be checking it.
It's correct, I'm Gautam? right. Okay. Okay, Gautam. Okay. Important, huh? बस अब कुछ ही सम बचे हैं and then we'll be done. Miss and physics. No, but math. इस पर क्लास में फिजिक्स लिखा है 12 बजे को. फिजिक्स का कौन सा चैप्टर तुम लोग का? मिस The sound. चल रहा है अभी स्कूल में. किसी ने साउंड की मेरे को पीडीएफ भेजी है क्या? अर्शिया सेंड इट. अभी ये करो बाद में. ओके. मिस आई वाज राइटिंग. ये क्या रे कुशल, जल्दी राइट करे. Miss, I have already sent it. Oh, you have. That's what I was thinking. अनीश, क्या रे तू शांत हो गया? समझ रहा है ना सब? समझ रहा है कि नहीं अनीश? Yes, miss. ओके. सो ये हो गया. नाउ हमने 12 तक किया, राइट? नाउ 13th you will do. We'll do 14th. Well, 14th also you can do. इसमें कुछ ऐसा खास अलग नहीं है. 15th भी कर लोगे. मैं 16th और 17th कराती हूँ. 14 चाहिए मैं करूँ कि जम जाएगा? मिस करो. हाँ, मिस हो जाएगा. हो तो जाएगा. 12 AB. अच्छा 14th हो ही जाएगा. कुशल मिस 13 भी होमवर्क है? या मैं लिखाती हूँ होमवर्क एंड में, डोंट वरी. 13 14 15 होमवर्क है. 16 17 कर रहे. क्वेश्चन 16. A plus 2B 3A plus B minus A plus B A plus 2B plus A plus 2B the whole square. अच्छा मुझे ये बताओ अभी कि इसमें कितने टर्म्स है गाइस? 3 terms. 1 2 and में 3 टर्म्स. ठीक है. अभी इन तीनों में we have to see what is common. So what is common? A plus A plus A plus 2B बराबर है कि नहीं? A plus 2B. सो यहाँ पे फर्स्ट टर्म में भी A, तो A plus 2B ब्रैकेट में मिस और मिस हाँ पर थर्ड में a plus 2b स्क्वायर है ना. हाँ तो उसका एक ही A plus 2B बाहर है, बाकी का तो अंदर रहेगा. जैसे x स्क्वायर में x अगर बाहर लिया तो एक और x अंदर रह जाता है ना, वैसे ही करेंगे. ठीक है. सो ये A plus 2B कॉमन लिया. सो नाउ फर्स्ट टर्म में व्हाट इज रिमेनिंग? 3A plus B माइनस सेकेंड टर्म में A plus B प्लस थर्ड टर्म में A plus 2B एक और बचा है तो वो रहेगा अंदर. समझा? ये स्टेप सबको समझा है? कुशल, are you understanding? Miss, can you explain again? Why are you not paying attention? Did you understand A plus 2B is common? How many terms are there? With 3 terms. Yeah, 1 2 3. और तीनों में क्या कॉमन है? A plus 2B A plus 2B. A plus 2B. तो वो आ गया बाहर. फर्स्ट टर्म में क्या बचा? 3A plus B माइनस सेकेंड टर्म में क्या बचा? A plus B प्लस थर्ड टर्म में और एक A plus 2B है. Yes, miss. ठीक है. Now this bracket you will have to work it out, है ना? You can't just leave it like that because A and B are like terms, so उसमें addition subtraction होगा. So 3A plus B बाहर माइनस है तो साइंस चेंज हो जाएगी. So minus A minus B plus A
plus 2b. ओके, ये a plus 2b तो ऐसे ही रहेगा. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस ए प्लस ए गया, प्लस बी माइनस बी गया, सो फाइनली क्या बचेगा, 3a plus 2b. So this is your final factorization. Check the answer and tell me. Gautam has sent it out. Ma'am, will square come? Square where in the third term, Gautam? No, it won't come ना बेटा, क्योंकि Yes, it is a plus 2b बाहर है और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है तो वो एक ही अंदर आएगा. समझा ना गौतम? मिस बराबर है. Okay, thanks, Tanisha. Now we will do the last question of this exercise. Question 17. 6xy into bracket a square plus b square plus 8yz into bracket a square plus b square minus 10xz into bracket a square plus b square. So again, this is not that difficult. यहाँ पे a square plus b square common है. कॉमन है, राइट? सो वो आ जाएगा बाहर और फर्स्ट टर्म में यहाँ पे बचता है 6xy, यहाँ पे बचता है 8yz minus 10xz. Now, is there anything that you can take common in this trinomial? Think about it. Look at the number. See, you are only looking at the variables. ये x, y, y, z, x, z है तो नहीं. मिस But numbers में है ना. यस मिस 2. 2 is common na, 2 3s are, 2 4s are, 2 5s are. Understood? So when you have to take out common factors, you have to take out common factors everywhere. So ये तो ऐसे ही रहेगा a square plus b square, but यहाँ पे 2 common factor निकलेगा और अब ब्रैकेट में बचेगा 3xy plus 4yz minus 5xz. ओके, तो कभी भी ऐसे 2 को बीच में नहीं रखते, you bring it in the beginning. So your final answer will look like this: 2 into a square plus b square into 3xy plus 4yz minus 5xz. Check this answer for me and let me know. मिस इट इज करेक्ट. Okay. So now note down your homework, guys. This Okay. homework, I will check everyone's homework on Monday. ये वाला. When you will come to me. हाँ, तो no camera work. सामने आके दिखाने का है, तो सबको करने का है. Okay. So मिस yes. मिस अगर किसी ने नहीं किया तो मेरी पिटाई होगी, मेरे हाथ रहेंगे, तुम्हारा चेहरा रहेगा, या तो मैं तुमको पूरा राउंड्स लगवाऊंगी या नील डाउन करवाऊंगी. नो, आई वोंट डू नो दैट. मिस. आई एम मीटिंग यू ऑल आफ्टर सो लॉन्ग. आई वोंट डू दैट. बट मेरा फेस टू फेस वाला एंगर बहुत खतरनाक रहेगा. सो just make me happy. हाँ, why would you do that? Why? You are going to do your homework and come. Okay, so now 20 homework. so homework exercise 13A. So I think we didn't do question number 2. मिस 2 4 6 8 10 Okay. 13 14 and 15. क्या बात. Yes miss. 2 4 6. Ma'am, we did 10. We did 10. We did Miss 10. 2 4 6 8 13. Yes miss. 2 4 6 8 13. Miss 13, 14, 15. 13, 14, 15 also, right? Yes miss. 13 14. So ये तो आपको खुद ही करने हैं और रीडो में मेरे को एक हाथ 2 क्वेश्चंस कराने हैं, Please don't be. which is 15 and नहीं 12 and 16. Question. This solved example. Yes, I was coming to that. ज्यादा नहीं है. Solved example 1 and 2. Okay. So better take a screenshot of the homework. Ma'am, is there a ground nearby? Yes, will Yeah, you take but physics? what are you going to do? Oh, you want to run, huh? You are planning कि तेरे को punishment मिलेगा. Miss, will you take physics? Janish.
Miss, don't take. Why? किस खुशी में? Done, guys. Dunzo. Okay. Chalo. TPS kids, you all can leave. You all have a physics test today. Prepare well and give it on time. Me which chapter? Light energy. उनका light का है. Yes, Maitreya, you want to say something, beta? Miss, take tomorrow no physics. Hi, Gautam. Okay. CA Bye, kids. Miss. Miss, when is